Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says the piston cylinder arrangement shown contains a diatomic gas at temperature 300 Kelvin. The cross-sectional area of cylinder is 1 meter square initially. Height of piston above the base of the cylinder is 1 meter square. The temperature is now raised 400 at constant pressure. Find the new height of the piston above the base of cylinder. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दे रखा है और इसमें डायटोमिक गैस को फिल किया गया है 300 केल्विन. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर 1 मीटर स्क्वायर है. इनिशियली इट इज एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर. सो यदि हम टेम्परेचर को रेस करते हैं 400 केल्विन का एट कांस्टेंट प्रेशर, सो हमें फाइंड करना है न्यू हाइट ऑफ द पिस्टन अबव द बेस. While given that if piston is now brought back to the original height without any heat loss, find the new equilibrium temperature of the gas. You can leave the answer in fraction. So second case में बोला जा रहा है कि यदि हम पिस्टन को बैक करें ओरिजिनल पोजीशन पर, so height without any heat lost, so new equilibrium temperature of the gas क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that at constant pressure, आइडियल गैस इक्वेशन का यदि हम यूज करें कि PV इज इक्वल्स टू क्या होता है nRT. सो कांस्टेंट प्रेशर पर यदि हम बात करें, so pressure is going to be constant. So can we just say that K V divided by T, this will be equals to क्या हो जाएगा N into R divided by P. So N number of mole of gas, R universal gas constant, और pressure already constant हो गया है. So this term is going to be constant here, and therefore we'll get that कि जो volume होगा that will be directly proportional to temperature. So ये हो गया first law. Now the second law or second concept we are going to use, the adiabatic process. So adiabatic process में we remember that के temperature into volume to the power gamma minus 1 is nothing but equals to constant होता है, जहाँ पर gamma adiabatic constant को represent करता है, T temperature V volume. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. सो चूंकि हमें कांस्टेंट प्रेशर पर बोला गया है, सो एट कांस्टेंट प्रेशर हमने कॉन्सेप्ट फर्स्ट में देखा कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का. सो इनिशियल और फाइनल केस को डिस्कस करते हैं कि इनिशियली वो हाइट 1 मीटर के बराबर है और फाइनल वो हाइट, तो इसको मान लिया h1 और फाइनल हाइट को मान लिया h2. सो उस केस के लिए यदि हम डिस्कस करें तो v2 by v1, दिस विल बी गोज टू T2 by T1 हो जाएगा. Now we remember that formula of volume can be given as area into length. So यहाँ पर length is nothing but going to be height. So ये simply हो जाएगा area into height. So इसको हम यहाँ substitute करेंगे. So we'll get area into height divided by area into h1 height. This will be equals to T2 by T1. So area cancel out हो गया. We'll get the required height h2 is equals to T2 divided by T1 multiply by h1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो T2 हमें कितना गिवन था 400 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 गिवन है 300 केल्विन मल्टीप्लाई बाय हाइट h1 1 मीटर्स. सो h2 will comes out equals to 4 by 3 meters. So ये होगा हमारा आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ इन द सेकंड पार्ट, यदि हम पिस्टन को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस से दोबारा लेते हैं, एंड एज पर द क्वेश्चन इफ देयर विल बी नो हीट लॉस. तो चूंकि हीट लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि ये किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट लॉस नहीं होता. सो therefore by using the adiabatic equation, temperature into volume to the power gamma minus 1 is equals to constant. For the given two situations we can write कि जो final temperature होगा that must be equals to
the initial temperature into the bracket initial volume divided by final volume to the power gamma minus 1. तो चलिए अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. फाइनल टेम्परेचर विल बी गोज टू, अब इस कंडीशन में इनिशियल टेम्परेचर क्या हो जाएगा 400 केल्विन. ठीक है. सो इस केस के लिए इनिशियल टेम्परेचर होगा 400 केल्विन into the bracket initial volume by initial final volume. So देखिए इसको हम कन्वर्ट करके TI मल्टीप्लाई बाय ना वॉल्यूम को हम अगेन एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं. सो एरिया एरिया ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सिंपली हो जाएगा इनिशियल हाइट बाय फाइनल हाइट होल टू द पावर गैमा माइनस 1. सो अब इनिशियल हाइट कितनी आई थी हमारे ऊपर, सो उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ये सिंपली हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 इसका पावर गैमा माइनस 1. सो एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर डायटोमिक गैस कितना होता है 1.4. ठीक है. यहाँ पर देखिए हमें गिवन है कि गैस कौन सी फिल कर गई है डायटोमिक गैस. सो डायटोमिक गैस के लिए एडियाबेटिक कांस्टेंट का वैल्यू 1.4 होता है. सो उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस का 1. तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. फाइनल टेम्परेचर विल बी गोज टू 400 मल्टीप्लाई बाय 4/3 होल टू द पावर 1.4 माइनस 1 हो जाएगा 0.4. सो इसको सिंप्लीफाई करने पर फाइनल टेम्परेचर विल कम्स नियर अबाउट 448.8 Kelvin, and therefore this is going to be the required answer for second part of this question. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.